बोले गिरिराज महाराज की जय। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापाद कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय श्रीकेशवप्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तवामन इति नामिने। नमः विष्णुपादाय आचार्यसिंहरूपिणे श्रीमद्भक्तिप्रज्ञानकेशव इति नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठभूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बरशम्भुदे पादाम्बुजयते नमः। नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भावो मेस्तं निर्दिष्टस्य जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथयते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्र्य मुदे गुरुपाद पद्म जगद्गुरु नितला वैष्णव विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्रील भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी श्री गुरु महाराज चरण कमले ये दास अधमेर साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धनदास बाबाजी महाराज चरण कमले दंडवत प्रणाम। समागत भक्तबिंद समागत मातृबिंद सकले चरणे ए दास अधमेर यथा जग दंडवत प्रणाम। आज परम पवित्र तिथि आमादेर मध्य आज अभिराम ठाकुरेर तिथि आविर्भाव तिथि। आजकेर तिथिते प्रभु अभिराम तिनि संसारे प्रकट हयेछिलेन। ओ अभिराम ठाकुरेर तिरोभाव तिथि। हाँ, आविर्भाव तिरोभाव वैष्णवेर एक ही व्यापार, केवल नाम मात्र भेद। तिरोभाव तिथि अभिराम ठाकुर। अभिराम ठाकुर इनी हच्छेन नित्यानंद प्रभुर
অত্যন্ত প্রিয়, নিত্যানন্দের প্রিয়, দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। ইনি ব্রজের ছিলেন শ্রীদাম শাখা। মহাপ্রভুর লীলায় তিনি অভিরাম ঠাকুর হয়ে তিনি এসেছিলেন। গৌরীয় গণদ্বীপিকায় সেখানে উল্লেখ আছে, পুরা শ্রীদাম নামাসদভি রাম অধুনা মহান দ্বাত্রিংশতা জনৈরেব বাইহম কাষ্টমুবাহজ। পুরা মানে তিনি ব্রজলীলায় তিনি শ্রীদাম নামে তিনি অভিহিত ছিলেন। অধুনা রাম অধুনা মহান, অভিরাম প্রভুর আর এক নাম আছে শ্রী রামদাস, কেউ কেউ রামদাসও বলে, রামদাস এই নামও আছে। অভিরাম এও এক নাম, শ্রীরাম সেও এক নাম। পুরা অর্থাৎ পূর্বকালে ইনি শ্রীদাম ছিলেন, অধুনা রামদাস। দ্বাত্রিংশতা জনৈরেব বাইহম কাষ্টম, দ্বাত্রিংশতা সেখানে বলছেন দ্বাত্রিংশতা, দ্বাত্রিংশত মানে একটা কাষ্ঠটার এইরকম ওজন মনে হচ্ছে 30-32 জন, 32 জন লোক মানে যেটাকে বহন করতে পারে, সেই কাষ্ঠকে তিনি অনায়াসে বহন করে তিনি উঠে তিনি বংশীর মতন তিনি ধারণ করেছিলেন। না, কাষ্ঠের কথাই বলছেন, কাষ্ঠম উবাহ ইহ। যাই হোক, ইনি হুগলি জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরে এনার পাঠ ছিল। পত্নীর নাম ছিল মালিনী দেবী। অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাঠ যে কৃষ্ণনগরে অবস্থিত, ওখানেও যে ছিল, সেখানে তাহা খানা বা দ্বারকেশ্বর নদীর কূলে অবস্থিত বলিয়া খানাকুল কৃষ্ণনগর নামে অভিহিত। বুঝলেন, তাহা খানা বা দ্বারকেশ্বর নদীর কূলে অবস্থিত বলিয়া খানাকুল কৃষ্ণনগর নামে অভিহিত। খানাকুল কৃষ্ণনগর। শ্রীপাঠস্থ মন্দিরের দ্বারে একটি বকুল বৃক্ষ আছে, মন্দিরের সামনে দ্বারে। সেই স্থানটি বা সেই সিদ্ধ বকুল কুঞ্জ নামে অভিহিত। কেন? এই বৃক্ষর নিম্নে অভিরাম ঠাকুর সর্বপ্রথম এসে এখানে বসেছিলেন। তিনি যে এখানে এসেছিলেন, বসেছিলেন না, ওখানে পাট, মন্দিরের দ্বারে একটি বৃক্ষ আছে, শ্রী পাঠস্থ। শ্রী মন্দিরের সম্মুখে পুষ্করিণী খননকালে শ্রী গোপীনাথ বিগ্রহ সেখানে পাওয়া যায়। মন্দিরের সামনে কূপ খননকালে তদবধি সেই পুষ্করিণীর নাম অভিরাম কুণ্ড নামে খ্যাত। এছাড়াও সেই মন্দিরের মধ্যে শ্রী ব্রজবল্লভ, শালগ্রাম শিলা, শ্রী গোপাল মূর্তি সেখানে এখনো অবস্থান করছেন, বিরাজিত আছেন, পূজিত হচ্ছেন। আছে যুগল মূর্তি, ব্রজবল্লভ যুগল মূর্তি। অভিরাম ঠাকুর ইনি অত্যন্ত তেজিয়ান একজন আচার্য ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে ভক্তি প্রচারকালে ইনি বহু পাষণ্ডীকে ইনি উদ্ধার করেছিলেন। অভিরাম ঠাকুর ভক্তি রত্নাকরে
পাওয়া যায় অভিরাম গোস্বামীর প্রতাপ প্রচণ্ড, যারে দেখি কাপে সদা দুর্জন পাষণ্ড। যাকে দেখেই সবসময় দুর্জন যারা পাষণ্ড তারা থরথর করে কাঁপত। নিত্যানন্দ আবেশে উন্মত্ত নিরন্তর, জগতে বিদিত যার কৃপা মনোহর। নিত্যানন্দের আবেশে তিনি সবসময় উন্মত্ত থাকতেন। নিত্যানন্দের প্রাণধন ছিলেন, নিত্যানন্দ প্রভুকে খুব ভালোবাসতেন। রামদাস অভিরাম সখ্য প্রেম রাশি, 16 সাঙ্গের কাষ্ঠতুলি যে করিল বাসি। চৈতন্য চরিতামৃতে এটা আছে 16 সাঙ্গের, মানে কেউ কেউ বলেন আর কি। এখানে বলছেন চৈতন্য চরিতামৃতে আছে 32 জনের, মানে যেটা বইতে পারে সেই কাষ্ঠকে তিনি একাই তুলেছিলেন। আর ভক্তি রত্নাকরে সেখানে আছে 1 শতাধিক জনের বাহিত একখানি বৃহৎ কাষ্ঠকে। ভক্তি রত্নাকরে আছে 100 লোক যে কাষ্ঠকে বহন করবে। সেই কাষ্ঠকে উঠে যিনি বাঁশির ন্যায় ধারণ করেছিলেন তিনি হলেন অভিরাম ঠাকুর। ভক্তি রত্নাকরে আছে শতাধিক লোকে যারে নারে চালাইতে, হেন কাষ্ঠ বংশী করি ধরিলেন হাতে। সেই কাষ্ঠকে বংশীর মতন ধারণ করেছেন অবলীলাক্রমে, খেলনার মতন। এইরূপ অলৌকিক লীলা দর্শন করে ভক্তগণ আশ্চর্য হতেন, প্রভু কীরকম লীলা করতেন। প্রভুর বিশেষ গুণ ছিল, ইনি যাকে প্রণাম করতেন এনার প্রণাম সকলেই গ্রহণ করতে পারত না। একমাত্র শালগ্রাম শিলা ব্যতীত, বিষ্ণু মূর্তি ব্যতীত অন্যত্র যে কোনো মূর্তি হোক তিনি যদি প্রণাম করতেন সঙ্গে সঙ্গে সেই মূর্তি বিদীর্ণ হয়ে যেতেন। এমনকি বৈষ্ণব যদি না হতেন, অবৈষ্ণব হতেন, অবৈষ্ণব হলেও প্রভুর প্রণাম কেউ স্বীকার করতে পারত না, কেউ নিতে পারত না। একমাত্র নিত্যানন্দ প্রভুর যে আত্মজ তিনি হলেন বীরভদ্র গোস্বামী, আর ছিল গঙ্গামাতা গোস্বামিনী, এনারাই প্রণাম গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, সহ্য করতে পেরেছিলেন, আর কেউ না ওই সময়ের সম্মত। বীরভদ্র গোস্বামী আর গঙ্গামাতা গোস্বামী। অভিরাম ঠাকুরের একটি অদ্ভুত চাবুক ছিল, যে চাবুকের নাম ছিল জয়মঙ্গল চাবুক। এই চাবুকের দ্বারা তিনি যাহাকে আঘাত করতেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত হতেন। চাবুকের কীরকম ক্ষমতা! চাবুকের স্পর্শ মাত্রেই সে হা কৃষ্ণ বলে সে রোদন করতেন। একদিন কি হয়েছিল, শ্রীনিবাস আচার্য অভিরাম ভবনে এসেছিলেন, তখন বাল্য ছিলেন, বাচ্চা ছিলেন। অভিরাম ঠাকুর তিনি কি করলেন, শ্রীনিবাসের গায়ে সেই চাবুক তিনি স্পর্শ করিয়ে দিলেন, মারেন নাই, যাই হোক স্পর্শ করে দিয়েছিলেন। তো অভিরাম পত্নী এসে কি করলেন, মালিনী দেবী পতিকে শ্রীবাসের গায়ে চাবুক স্পর্শ করতে নিষেধ করলেন। মালিনী দেবী এসে, অভিরাম ঠাকুরের পত্নী এসে নিষেধ করলেন, প্রভু আর এনাকে মানে চাবুক স্পর্শ করাবেন না। বালক তো, সে তো বালক, এখন চাবুকের স্পর্শ মাত্রই প্রেমন্মত হয়ে পড়বেন, ইত্যাদি ইত্যাদি প্রভুর সেই লীলা ছিল। শ্রীনিবাস আচার্য
অবিরাম ঠাকুরের অতি প্রিয়তম, তিনি স্নেহভাজন ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্যকে খুব ভালোবাসতেন। দীক্ষিত না হলেও শিষ্যের মতনই দেখতেন, শিষ্য বাৎসল্যবৎ, পুত্রবৎ। ওই জয়মঙ্গল চাবুক এখন মন্দিরের অভ্যন্তরে সিন্দুরের মধ্যে রক্ষিত আছে, বাক্সের মধ্যে। অবিরাম ঠাকুর সম্বন্ধে ভক্তি রত্নাকরে এইরকম উল্লেখ আছে, অহে শ্রীনিবাস কত কহিব তোমারে, জীব উদ্ধারিতে অবতীর্ণ বিপ্র ঘরে, সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত পরম মনোহর, নিত্যগীত বাদ্যে বিশারদ নিরূপণ। প্রভু নিত্যানন্দ বলরামের ইচ্ছাতে করিল বিবাহ বিপ্র বিপ্রের গৃহেতে, শ্রী অভিরাম পত্নী নাম মালিনী, তাহার প্রভাব যত কহিতে না জানি, ইত্যাদি ইত্যাদি ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের মধ্যে প্রভুর সেখানে উল্লেখ আছে। পুরীর বালি মঠ, এই মঠ অনেকেই বলেন অভিরাম ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত। বালি মঠ পুরীতে, এটা সমুদ্র মানে হচ্ছে স্বর্গের দ্বারেই আছে মনে হচ্ছে এটা পুরীতে, বালি মঠ। হ্যাঁ মনে হচ্ছে। যাই হোক, চৈত্র কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে অবিরাম ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। খানাকুল কৃষ্ণনগরে মহামহোৎসব, বহু লোকের সমাগম আজ তিথিতে হয়। খানাকুলে কৃষ্ণনগর। অবিরাম ঠাকুরের চরণে আমাদের দণ্ডবত প্রণাম। এখন আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত কথা আমরা শ্রবণ করব। समझ में कुछ आया? बांग्ला तो समझ में आएगा नहीं। चलिए भागवत कथा सुनेंगे। एकादश स्कंदो अष्टाविंशति अध्याय। इसी अध्यायों में भगवान उद्धव को ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। वास्तव में इसी संसार में हम जो कुछ देख रहे हैं, ये वास्तव में है क्या? इन वस्तु के साथ हमें किस प्रकार आसक्ति करना चाहिए, आसक्ति करना नहीं चाहिए, स्वयं भगवान यहाँ पर उद्धव जी को उपदेश करेंगे। यदि स्म पश्यत्य सदीन्द्रियार्थम नानानुमानेन विरुध्य मन्यत न मन्यते वस्तुतया मनीषी स्वाप्नम जथोत्ताय तिरोदधानम। यदि होता है, अगर ऐसा कभी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर हो जाए कैसा? असत इंद्रियार्थम पश्यति स्म। असत इंद्रियार्थम, असताम बहिर्मुखानाम इंद्रियाणाम अर्थम विषयम पश्यति स्म। जो भगवान का परम भक्त है, जो परम विद्वान है, ज्ञानी जन है, असत वस्तु को, अनित्य वस्तु को कभी भी मन से उन वस्तु को देखते नहीं है। कैसे देखेंगे? ये असत वस्तु है, अनित्य है, देखते हुए भी उन वस्तु के ऊपर ज्ञानीजन, मुनिजन आसक्ति नहीं करते हैं पाने के लिए। मानिए
कभी ऐसा हो जाए, धन संपत्ति अनित्य है, घ्वार द्वार अनित्य है, कदाचित ये घ्वार द्वार देख करके अगर किसी विद्वानों के भीतर, महात्माओं के भीतर वो पाने की इच्छा है, भाई ये कैसा है, पैसा कैसा है, सुख कैसा है, अगर मन में इच्छा हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। पर होने पर फिर भी वो महात्मा लोग उन वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं करते। मन तो चंचल मन है, वो कभी तो कुछ मनन कर सकता है, चिंतन कर सकता है। बोले मन में चिंतन होने पर भी, सामने वो वस्तु आने पर भी ज्ञानीजन जो है, महात्मा जो लोग जो है, कभी उस वस्तु को आसक्ति नहीं करते हैं, उन वस्तु को अनित्य ही मानते हैं। किस प्रकार? आप उदाहरण के साथ कह रहे हैं, स्वाप्नम तिरोदधानम उत्थयो यथा। स्वाप्नम, सपनों में हम कितने कुछ देखते हैं, देखते कि नहीं देखते? अगर हम सपनों में देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, क्या भी कुछ देखे, धन देखे, संपत्ति देखे, क्या भी कितना कुछ सपने में आए, उत्थायो यथा, आप जब सपनों से जागेंगे, जागने के बाद यथा क्या है? यथा स्वप्न उत्थायो प्रबुद्ध्या संस्कारेण स्फुरन्त्यम स्वयं एवो तिरो भवन्तम स्वप्नम विषयम वस्तुतया न मन्यते तथा। वस्तुतया उन वस्तु को वो स्वीकार नहीं करते हैं। अरे हमने सपनों में ही तो देखा, ये तो वास्तव में है नहीं है। वास्तव में है, तुमने बहुत कुछ देखा है ना। सपनों में आपका नौकरी लग गई, मान लीजिए, तो सुबह उठ कर के तुम आनंद करेंगे, किसी को मिठाई खिलाएंगे? क्यों नहीं खिलाएंगे? नौकरी लग गए सपनों में तो मिठाई खिलाना चाहिए। जैसे वास्तव में किसी को नौकरी लग जाए तो किस प्रकार आनंद होते हैं, किस प्रकार आनंद करते हैं, तो तुमको करना चाहिए। तुम जब सपनों जब खत्म हो जाएंगे, जब जग जाएंगे, तब उस समय तुम अनुभव करेंगे, अरे ये तो सपनों ही है। सपन अर्थात वो वास्तविक नहीं है, वो अनित्य है, वो मिथ्या है एक प्रकार। उसी प्रकार इस संसार में हम जो कुछ देख रहे हैं, हमारे आंखों के सामने जो कुछ भी विराजमान है, ये भी एक प्रकार स्वप्न की तरह है। हम तो देख रहा है, ये सब कुछ है, विराजमान है। जिस दिन दोनों आंख बंद हो जाएंगे और आंख बंद होने के बाद आपके सामने कोई नहीं रहेगा, कोई रहेगा? सपनों में बहुत कुछ देखते हैं, रंग बिरंग क्या ना कुछ देखते हैं मन के द्वारा। आंख खोलते ही सारा वस्तु गायब हो जाता है, होता कि नहीं होता है? तो उसी प्रकार संसार में जो कुछ भी है, जिस दिन दोनों आंख बंद हो जाएंगे, आंख बंद होने के बाद तुम्हारे सामने से सारा सब कुछ गायब हो जाएंगे। अगर बुद्धिमान व्यक्ति है, सब कुछ जानते हैं, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे वस्तु के ऊपर आसक्ति करेंगे? सपनों की तरह ये संसार भी है, अनित्य है। इसलिए ज्ञानीजन, जो बुद्धिमान विवेकी जन है, देखकर भी इन वस्तु के ऊपर आसक्ति नहीं करते हैं। भगवान यही कह रहा है, नाना अनुमानेन विरुद्ध्यम नाना आत्मा मिथ्या स्वप्नवत इत्यानुमानेन बाधितम सत् अन्यत् आत्म व्यतिरिक्तम किंचित वस्तुतया यथार्थम तेन न मन्यते निर्धारयति। वास्तव में ये संसार जो कुछ भी है, ये सब एक प्रकार असत्य ही है, अनित्य ही है। अनित्य होने के कारण विवेकी जन इन वस्तु के ऊपर आसक्ति नहीं करते हैं। भगवान फिर कहते हैं,
पूर्वं गृहीतं गुणकर्मचित्र मज्ञानमात्मन्यविविक्तमङ्ग निवर्तते तत्पुनरीक्षैव न गृह्येत नापि विसृज्य आत्मा। हे अंगो अर्थात हे उद्धव, पूर्वम गुण कर्म चित्यम अज्ञानम आत्मनि अविविक्तम। देखिए किस प्रकार भगवान बात कर रहे हैं उद्धव से। पूर्वम होता है बद्ध अवस्थायाम, मुक्ति से पहले। मुक्ति से पहले सब बंधे हुए हैं, माया के द्वारा बंधन दशा में है, मुक्ति से पहले। तो उस समय गुण कर्म चित्रम अज्ञानम आत्मनि अविविक्त्यम। गुण कर्म और चित्र जो है, अनेक प्रकार जो कुछ भी कर्म है, इसके द्वारा अज्ञानम कार्यम आत्मनि अध्यासते। आत्मा में वो अध्यास होता है। अध्यास माने आरोप, आरोपित है ना। जैसे जो कुछ भी अज्ञान के द्वारा जो कुछ कार्य हो रहे हैं, और ये सब कार्य आत्मा में ही अध्यास्त होता है, उसमें ही अभिन्न रूप में देखा जाता है। हाँ हाँ, যে সমস্ত মানে বদ্ধ অবস্থায় আপনি যত কিছু করছেন কর্ম, তো এই সমস্ত কর্ম অজ্ঞানযুক্ত। তো অজ্ঞানযুক্ত হওয়ার জন্য অজ্ঞানের দ্বারায় আপনি মনে করছেন এটা আমার আত্মার ধর্ম। আত্মার মধ্যে এটা অবস্থান করছে, আত্মার সঙ্গে এটা আপনি অভিন্ন মনে করছেন। কোনটা? যে সমস্ত করছেন, ভালো মন্দ যা কিছু করছেন, এটা আপনি এখন নিজের কি মনে করছেন? এটা আত্মার ধর্ম। হ্যাঁ, আর আপনার মনে হচ্ছে এটা আমাদের এখন বর্তমান আত্মার ধর্ম, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আত্মার তো এটা ধর্ম নয়। সে কথাই বোঝাতে যাচ্ছেন ভগবান। তাহলে কতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে এইরকম অবস্থাটা? মুক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত। এই মায়ার বন্ধনে যতক্ষণ থাকবো, ততক্ষণ আমরা যতই কিছু করি না কেন, তখন মনে করবো সব আত্মার বৃত্তি, আত্মার স্বভাব, তাই করছি আমরা। লোকে বলে না, আরে আত্মা চায় তাই খাচ্ছি। আত্মা যেতে, আত্মা কি খেতে চায়? আত্মা কি যেতে চায়? আত্মার এই সমস্ত কোনো নয়, সব অজ্ঞানের পরিচয়, অজ্ঞানের ধর্ম। भगवान वही कह रहा है, फिर तत्एव पुनः इक्षया निवर्तते आत्मा न तो गृह्यते नौपि विसृज्य। उसी वस्तु को, उसी से जब आप मुक्त हो जाएंगे, कोथा थेके? अज्ञान थेके আপনি যখন মুক্তি হবেন, ঠিক আছে, অজ্ঞান যখন আপনার দূরে যাবে, তখন কিন্তু আপনার যে আত্মার যে স্বভাব, সেই স্বভাব আপনার ফিরে আসে, প্রকাশিত হয়। কিন্তু আত্মা কখনো সেটা গ্রহণ করছে না বা সেটা পরিত্যাগ করছে না। এখন অজ্ঞান দূর হয়ে গেল, আত্মার থেকে সেই সময় দোষ চলে গেল বলে এইরকম বললে চলবে না। আত্মাকে স্পর্শই করতে পারে না, আত্মার থেকে কত দূরে থাকে। আত্মাকে আত্মা গ্রহণও করে না, आत्मा त्यागो करे ना, ছেড়ে होता है। हाँ, सब अज्ञान, संसार जो कुछ हो रहे हैं ये अज्ञानों का परिचय है। अज्ञान दूर हो जाएंगे तो फिर हमें मालूम हो जाएंगे वास्तव में हम संसार में क्या कर रहे हैं, है ना। उदाहरण के साथ कह रहे, देखिए
जथा हि भानोरुदयो नृचक्षुषं तमो निहन्यात् न तोषाद् विधत्ते एवं समीक्षा निपुणा सती मे हन्यात् त्वमिश्रं पुरुषस्य बुद्धि। जथा ही, जथा माने जिस प्रकार, भानु, भानु किसका नाम है जानते हैं? सूरज देवता का नाम भानु है। भानु का अनेक नाम है ना सूरज का। उदयः नृचक्षुषाम तमः निहन्यात्। जब सूर्यों का उदय होता है, उदय होने से क्या होता है? नृचक्षुषम, नृचक्षुषम, नृ होता है मानव। मानवों का जो नेत्र है, नेत्रों में जो तम तम होता है अंधेरा। अपराध होंगी, अपराध होने से संसार में जो कुछ भी है, आग होते हुए भी हम देख नहीं पाएंगे। देख पाएंगे? अंधेरा के समय ऐसा परिस्थिति है, वस्तु का तो बात छोड़ ही दीजिए, अपना शरीर भी हम देख नहीं पाएंगे। तो क्या हम जिस वस्तु को हम देख नहीं पा रहा है, क्या ये वस्तु दर्शन के बिना हम देख नहीं पा रहे? क्या वस्तु का विनाश हो रहा है? वस्तु का नाश हो रहा है? वस्तु के आपके आंखों के सामने से अदर्शन हो रहा है? क्या ऐसा कोई है क्या? वस्तु तो वस्तु ही है, वही तो है, पर आपके नजर से वो अलग हो रहा है। कारण क्या है? ये कारण एक ही है, आपके आंखों के सामने एक तम होते अंधेरा आकर के छा गए। अंधेरा के कारण वस्तु रहते हुए भी आप उस वस्तु को देख नहीं पा रहे हैं। पर अंधेरा जब हट जाएंगे, अंधेरा हटने के बाद क्या होंगे? जब सूरज उदय होंगे, सूरज उदय होते ही तम क्या हो जाएंगे? अंधकार विनिहन्यात् नाशयति न तु सद विधत्ते। अंधेरा चले जाएंगे, आप फिर देखेंगे घट पट, ये जो कुछ मकान जो है, जो कुछ रूप जो है, जो कुछ संसार का दृश्य जो है, आप फिर देख पाएंगे। क्या ये भी एक प्रकार ऐसा भी माना जाता है? सूरज उदय हुआ है, जब हम दर्शन करते हैं, दृष्टि से सृष्टि, एक प्रकार ऐसा भी संप्रदाय है, लोग है। सृष्टि वही है जहां हम देखता है, और जिधर हम देखते नहीं है सृष्टि है नहीं, उधर क्या है, पीछे क्या है, क्या हम मालूम क्या है। पर यह बात नहीं है। सूरज उदय हुआ है इसलिए सब कुछ उदय के साथ सृष्टि हुआ है, ऐसा नहीं है। उदय से पहले भी ये था, पर उन वस्तु को क्या हम देख नहीं पाए। कारण क्या है? अज्ञान के कारण, अंधेरा के कारण उन वस्तु को हम देख नहीं पाए, दर्शन नहीं कर पाए। इसलिए कहा न तु सद विधत्ते। ये सूरज उदय होते ही उन्होंने सबको प्रकट किया है, ऐसा नहीं है। अंधेरा में भी था, और जब सूरज उदय हुआ तब केवल उन वस्तु को हम देख रहा है। परंतु घटादिकम विद्यमानम दृश्य विषयम न सृजति। यही कहा है। क्या कहा है? सूरज देवता घटादिकम विद्यमानम दृश्य विषयम न सृजति। ऐसा नहीं है इन सब वस्तु को सूरज देवता सृष्टि करते, এটা এরকম নয়। সূর্য উদয় হলে সংসারের সৃষ্টি হয়, সূর্যের অস্ত হলে সংসারের নাশ হয়, এটা এরকম কোনো কথা নয়। তদ্রূপ মে সতী নিপুণা
अज्ञान नाश समर्था समीक्षा आत्मविद्या पुरुषस्य बुद्धि तमिश्रम स्वरूप आवरक ज्ञान मात्र हन्यात नाशति न तो स्वरूपम करोति। ওই কথাই বলছেন। हाँ, वो जो में सती निपुण अज्ञान नाश समर्था समीख्य आत्मविद्या पुरुष से बुद्धि तमिश्रम, आपके भीतर जो अज्ञान जो है ना, अज्ञान ही दूर हो जाएंगे। अज्ञान दूर होने से आपका स्वरूप ज्ञान उदय हो जाएंगे, है ना। वास्तव में जो आपका आत्मा जो है, आत्मा में जो ज्ञान है, आत्मा में जो समर्थ है, वो तो स्वतः सिद्ध है, पर होने पर भी अज्ञान के कारण उन ज्ञान को अब हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम लाभ नहीं कर पा रहे हैं। जब अज्ञान चले जाएंगे तब स्वतः सिद्ध वो ज्ञान आप प्राप्त कर पाएंगे। एषः स्वयं युतिरजो अप्रमेय महानुभूति सकलानुभूति एको द्वितीयो वचसं विरामे जेने सीता बाग शबशरंती। देखिए, जेनो इशिथा बाग शभ बाग अशभ प्राण चरंती। हमारे शरीर में ऐसा कौन है जिनके द्वारा हम प्रेरित होकर के, जिनके द्वारा चालित होकर के हम सब कुछ कर पाते हैं। हम जो अपने वाक्यों के द्वारा हम जो कुछ बोल रहे हैं, बोलने से पहले इन शक्ति को कौन प्रदान कर रहे हैं? मन जो है, मनन करने का शक्ति उन मन को कौन दे रहा है? आत्मा में, प्राण में जो शक्ति है, उन प्राणों में शक्ति कौन प्रदान कर रहा है? इशिता प्रेरिता, वो कौन है जो हमें सब कुछ शक्ति दे रहे हैं, हमें प्रेरणा दे रहा है, शक्ति दे रहा है, हमें चालित कर रहे हैं, बोलने का शक्ति दे रहा है, देखने के लिए शक्ति दे रहा है? वो कौन है? संसार में वही एकमात्र परमात्मा है, वही एकमात्र भगवान है। और भगवान कैसा है? हम तो कहते हैं भाई भगवान है, भगवान है। भगवान का वास्तव में स्वरूप क्या है? उन स्वरूप को तो जानना चाहिए, भगवान किस स्वरूप में है। भगवान उद्धव से कहते, उद्धव वो जो भगवान जो है ना, वो भगवान एक अद्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम। भगवान एक है, एक छोड़ करके दो भगवान संसार में नहीं है। लोग कहते हैं ना अनेक भगवान है, ये भगवान वो भगवान, वास्तव में उनका भूल धारणा है। भगवान एक है। ये भगवान का अवतार जो है, भगवान का लीला जो है, लीला अनेक है। भगवान अनेक रूप धारण करके संसार में आते हैं और संसार को उद्धार करते हैं। शास्त्रों में जिस प्रकार उनका रूप बताया है, उस रूप के अनुसार, शास्त्रों में जिनका रूप नहीं है, जिनका वर्णन नहीं है, ऐसा वस्तु को अगर हम भगवान कहेंगे, ये गलत भावना है। इसलिए भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, भगवान वामन है, भगवान नरसिंह देव है, ये सब भगवान है। ये शास्त्रों में है, वेदों में है। इसलिए कहा एकम एव अद्वितीयम, भगवान एक है। पर भगवान के साथ जीवात्मा का तुलना करेंगे, बोले जीवात्मा एक नहीं है, जीवात्मा तो अनेक है। इस संसार में जीवात्मा कितने हैं? बोले जीवात्मा अगणित है, आप गिन नहीं पाएंगे जीवात्मा कितने जीवात्मा संसार में है।
प्रत्येक शरीर के भीतर एक एक जीवात्मा है। हाँ हाँ, उन जीवात्मा के साथ भी परमात्मा अवस्थान करते हैं जब शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार भी है, ये तो हम देख रहे हैं, ये शरीर धारण किए हैं, सबके भीतर जीवात्मा है, ऐसा भी स्थिति है। इस संसार में पूरे स्थान जो है, इतना सा खाली जगह के भीतर आप देखेंगे, उसमें भी करोड़ों करोड़ों जीवात्मा उसमें घूम रहा है। उन जीवात्माओं को शरीर प्राप्ति के लिए, शरीर धारण के लिए उनको सुविधा नहीं मिल रहा है, उनको समय नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान तो एक है, पर ये जीवात्मा, जीव अनंत है, जीव अनेक है। अजह अप्रेमय अप्रमेय। देखिए, भगवान अजो है। अजो अर्थात भगवान का कभी जन्म नहीं होता है। जन्म होता है कभी? भगवान का आविर्भाव है, भगवान का प्रकट है। मथुरा कंस कारागार में भगवान का क्या हुआ है? आविर्भाव हुआ है, प्रकट हुआ है। इसीलिए कहा है भगवान अजय है, भगवान जन्म रहित है। जन्म रहित होने के बाद भी भगवान लीला के लिए संसार में जन्म ग्रहण करते हैं। और ये जन्म जो है, ये जन्म है दिव्यम। जन्मो कर्मो चमे दिव्यम। दिव्यम अर्थात अपराकृत है, लौकिक नहीं है। पर जीव जो है, जीवात्माओं का भी जन्म नहीं है, पर माया के साथ बंधन होने के कारण अपने कर्म फल भोगने के लिए उस शरीर को स्वीकार करते हैं। हाँ, अप्रेमयो अप्रमेयो अर्थात अप्रमेयो, आप उन भगवान को प्रमाण नहीं कर पाएंगे, उनका सीमा आप निर्धारण नहीं कर पाएंगे, भगवान कहाँ से कहाँ तक है, उनका जो रूप, उनका शक्ति कितना बड़ा है, आप प्रमाण नहीं कर पाएंगे। आप अपने इंद्रियों के द्वारा आप अनुभव नहीं कर पाएंगे भगवान कितना बड़ा है, कितना छोटा है। हाँ, अनोर अनियान महतो महियान। संसार में जो बड़ा है, सबसे बड़ा भगवान ही है। और इस संसार में सबसे छोटा चीज जो है, उन छोटा से भी सबसे छोटा भगवान ही है। इसलिए श्रुति में कहा है अनोर अनियान महतो महियान। तो जो सबसे बड़ा है, उन वस्तु को आप कैसे माप पाएंगे? है ना? महानुभूति, सकल अनुभूति। देखिए, महानुभूति, महानुभूति वो चित्त पुंज है, चित्त स्वरूप है। हाँ, महानुभूति। और सकल अनुभूति, सकल होता है सारा विश्व संसार को वो अनुभव करते हैं, सारा ज्ञान उनमें है। हाँ हाँ, सब सकल अनुभूति अर्थात भगवान सर्वज्ञ है, पर जीव सर्वज्ञ नहीं है, जीव है अल्पज्ञ। हाँ हाँ, वचसाम वाक्यानाम विरामे अगोचरत्वेन निवृत्त्यो। ये वस्तु जो है, जो वर्णन किया है परमात्मा के बारे में, ब्रह्मों के बारे में, उन वस्तु पर ना तो हमारा वाक्य, ना तो हमारा तो मन वहाँ पहुँचता है, वह प्रवेश नहीं करते हैं। मन के द्वारा उन वस्तु को हम चिंतन नहीं कर पाएंगे, वाक्यों के द्वारा उन वस्तु को हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर भक्ति है, भक्ति युक्त मन है, भक्ति युक्त वाक्य है, तो अलग बात है।
भक्ति छोड़ करके हम कभी भी उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। निवृत्त्यु सताम स्वयं योति स्वप्रकाश रूपंश भवति। भगवान स्वयं युति स्वरूप है, स्वयं प्रकाशशील है, और जीवात्मा उनका ही प्रकाश है, उनका ही अंश है। इसलिए कहा एषः स्वयं योति रजो अप्रमेय महानुभूति सकलानुभूति एको अद्वितीयो वचसाम विरामे येने सीता बाग बशस सरंती। वही भगवान है, परमात्मा है, जिनके शक्ति से सारा विश्व संसार चल रहे हैं। उनके बिना और संसार में कुछ है नहीं। वास्तव में वही एकमात्र परम सत्ता है, और जो कुछ चल रहे हैं, जो कुछ हो रहे हैं, उनके शक्ति से हो रहा है। भगवान के बिना किसी का अस्तित्व है नहीं। परिक्रमा जाएंगे? अच्छा, कल जाए। एतावानात्म सन्मोह यद विकल्पन्तु केवले आत्मनृते समात्मान मवलंबो न यस्य ही। देखिए, स्वम आत्मनम रीते, आत्मा के बिना, अपने आत्मा के बिना, परमात्मा के बिना क्या है? यस्य विकल्पस्य अवलंब्य नहीं नास्ति। इसको छोड़ करके संसार में कुछ है ही नहीं। आत्मा परमात्मा के बिना, आत्म वस्तु के बिना इस संसार में और द्वितीय कोई वस्तु है नहीं। केवल है, केवल होता है, केवल, केवल होता है एक, इसमें दो नहीं है, केवल वस्तु। हाँ, केवल शब्द का अर्थ केवल अद्वितीय, केवल एक। आत्मन अर्थात विकल्प भेद इति एतावान सर्वोपि आत्मसन्मोह। अर्थात अगर कोई आत्मनि विकल्प, अगर कोई कहता है इससे कुछ है, विकल्प होता है आत्मनि विकल्प, अर्थात आत्मा से, परमात्मा से और कुछ है संसार में, विकल्प होता है। अथवा अगर कोई मानता है भाई हाँ आत्मा से, परमात्मा से और कुछ है, तो भगवान कहते हैं आत्मो सन्मोह, वो केवल उनके ऊपर, वो केवल आत्म, वो केवल क्या है? आत्म सन्मोह, आत्मनो मनसो सन्मोह ए भ्रम एवं। उनका केवल वो ज्ञान जो है वो केवल भ्रमयुक्त ज्ञान ही है। वास्तव में वो ज्ञान नहीं है, वास्तव में वो पंडित नहीं है जो संसार को और कुछ मानते हैं। हाँ, भगवत शक्ति छोड़ करके, भगवान का अस्तित्व छोड़ करके और अगर कुछ है, अगर कोई इस प्रकार मानते हैं, तो कहता है उनका बुद्धि का यह भ्रम है एक प्रकार। इसलिए हर वस्तु में भगवान का शक्ति, भगवान अवस्थान है। भगवान शक्ति नहीं है तो प्रतीक। कहाँ? जो कुछ देख रहे हैं सब कुछ भगवान का ही सब कुछ है। इस प्रकार भगवान जो कुछ आगे कहेंगे कल हम लोग श्रवण करेंगे। ये आत्मज्ञान तत्व है, थोड़ा कठिन है। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमो। बोले गिरिराज महाराज की।